फिर से एक बार आपके साथ। लास्ट क्लास में हमने 11 के क्लासेस में व्हाट वी हैव कवर्ड दैट अनसर्टेनिटी एंड मेजर्स में वी वर गोइंग थ्रू आवर टॉपिक दैट वाज आपने साइंटिफिक नोटेशंस हमने देखा था कि व्हाट साइंटिफिक नोटेशंस मीन्स टू एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर calculations in the physics and chemistry. Clear? Now we will go through significant figure. Significant figure ये क्या होता है? जब हम measurements की बात करते हैं तो जितने भी numbers होते हैं measurements में those all the numbers are not counted. ठीक है? अब क्यों नहीं count होता है? Because उसका significantly कोई meaning नहीं होता है। जैसे कि definition में आप लोग देख रहे हो, what do you mean by significant figure? Those digits which carries meaningful contribution to measurement resolution. कहने का मतलब है कि वो सारे digits जो एक meaningful contribution देते हैं किसी भी measurement में, that is known as significant figure. तो significant figure count हम निकालते कैसे हैं? significant figure count निकालने के कुछ particular rules हैं. What were the rules? Let's go for that. First rule क्या है कि all the non-zero digits, non-zero numbers are counted for significant figure. All the non-zero digits. Non-zero digits में कौन कौन से आ जाते हैं? That is 0, 1 to 9. यानी कि जहां भी मेरा 1 to 9 numbers है उसको हम क्या करेंगे? That will be counted for significant figure. Clear? Second rule क्या है? Example ले लो इसका, मान लो मेरे पास है 689. 689 नंबर है, तो how many significant figures are there? There is 3 significant figures. ठीक है, तो इसका significant figure कितना हो गया? 3. Clear? Next, what rule is? All the zeros between two non-zero digits are significant figure. All the zeros between two non-zero digit. ठीक है, all the zeros between two non-zero digits are counted as a significant figure. तो ये कैसे होगा? देखो, मान लो मेरे पास नंबर है 6008. ठीक है, तो ये जो जीरोस है, ये जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे. यानी कि यहाँ पे क्या हो गया मेरा सिग्निफिकेंट फिगर? ऑल द 4, दैट इज इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया मेरा 4. क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि zeros to the left hand side of a first non-zero digit, that is not a significant number. 0 to the left hand side to the first non-zero digit is not significant. Example, 0.08. In this, whatever zero is to the left hand side, that is non-significant. That means your significant figure is just 1. That is one significant figure. Clear? Now coming to fourth point. What fourth point says? That zeros to the right hand side of a counting number is counted as a significant figure. 0 to the right hand side of non-zero digit is counted as significant figure, that is 100.0. ठीक है, rather there is a condition. जैसे अगर मैं बात करती हूँ 100 की, तो 100 में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट आता है. आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट पॉइंट. बट जब हम बात करें 100.0 की, तो इस केस में जितने भी जीरोज हैं उन सबको हम काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. लेकिन यहाँ जब बात आती है 100 की, तो 100 दूसरे केस में काउंट आता है. दिस इज अ राउंड ऑफ नंबर. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. यहाँ पे क्या हो गया मेरा? यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट 100.0, देन द सिग्निफिकेंट नंबर इज 4.
101.020. What is the significant number? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significant number 6. Clear? Now coming to last point, that is fifth point. What fifth point says? Fifth point is all about the counting numbers. Counting, that is certain numbers. अब certain numbers से क्या मतलब है? When we are talking about objects, ऑब्जेक्ट्स की जब बात कर रहे हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स में हम एक होल नंबर या राउंड नंबर लेके चलते हैं. दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट एक सिंपल सा नंबर लो, जो अभी हमने बोला था 100 या फिर 500. अब 100 के केस में क्या हो रहा है? 100 के केस में यहाँ पे ये जीरो को हम काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि ये मीनिंग बनाता भी है, नहीं बनाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपली नंबर 500, इट not necessary to count 0 zeros, but when we talk about 500 rupees, then those 2 zeros are very meaningful numbers. So what we have to do in this, we have to use the scientific notation term. What we will do, change this into scientific notations. And how can be it can be changed? 5 into 10 to the power, we are shifting decimal from here to here, then 10 to the power 2. Okay, this is scientific notation. And then this exponent part is not counted in significant figure. Then what we will count? Only this number. Then our significant figure will be 1. Clear? You are clear with all the points? ठीक है, ये सारे 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमने सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, और इस सिग्निफिकेंट फिगर का हम यूज करेंगे या तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए या तो फिर राउंड ऑफ करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज राउंड ऑफ. आप इसको नोट डाउन कर लो. मैं राउंड ऑफ को एक बार आपको दिखाती हूँ कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज राउंड ऑफ. अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ क्यों करते हैं, सबसे पहले ये बात आती है. राउंड ऑफ इसलिए करते हैं बिकॉज वी विल गेट अ लॉट ऑफ नंबर आफ्टर डेसिमल्स. तो उतने सारे डेसिमल नंबर्स को लेके साथ में चलना इज नॉट अ कन्वीनियंट वे टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो व्हाट वी डू, वी राउंड बेसिकली जो हम राउंड ऑफ करते हैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में अप टू 3 डेसिमल नंबर्स करते हैं. तो आप उसको शॉर्ट में करके 3 डेसिमल नंबर्स में करके राउंड ऑफ करके फिर उसको आगे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. तो एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर जो भी मेरा आंसर में होना चाहिए. ठीक है, तो राउंड ऑफ बेसिकली करने का 3 तरीका है. पहला, जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 5, लास्ट नंबर लेस देन 5 एंड लास्ट नंबर इज इक्वल टू 5. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो इसका रूल क्या है, जब भी मेरा लास्ट जो नंबर है वो अगर ग्रेटर देन 5 है तो हमने क्या करना है, वी एड 1 to the preceding number. ठीक है, when less than 5 है तो उसका क्या रूल है, we decrease when less than 5 then we keep the preceding number as it is. और when equal to 5 है तो इसमें 2 केसेस आ जाता है. इक्वल टू 5 में we see the preceding number. प्रीसीडिंग नंबर का मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर का लास्ट जो नंबर है उसके पहले वाले नंबर की हम बात कर रहे हैं. तो प्रीसीडिंग नंबर इफ ऑड है या फिर इवन है. अगर ऑड है तो उस केस में हमने क्या करना है, प्रीसीडिंग नंबर +1, और अगर इवन है तो एज इट इज. क्लियर? एग्जाम्पल्स देखते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट greater than 5, that is 6.289. Clear? अब 289, 3, 5, 7. We have after decimal we have so many numbers, so we will like do rounding off this number
then we will see this is greater than 5, then this will be converted into greater than 5 में क्या रूल था, पहले वाले नंबर को +1 कर देना है, तो क्या हो जाएगा 6.289336। क्लियर। अब इसको एक और नंबर को हम ये करते हैं, ये क्या है, ये भी ग्रेटर देन 5 है, तो क्या हो जाएगा, इसके पहले का नंबर को हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो दैट विल बी 6.2894। क्लियर। अब फिर इसको भी अगर हमने करना है तो क्या करेंगे, ये क्या है मेरा लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 में उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा, तो दैट विल बी 6.289। क्लियर। अप टू 3 डेसिमल मेरा राउंड ऑफ हो गया, वी विल लीव इट। अब देखते हैं एग्जाम्पल इक्वल टू 5 अगर होता है तो क्या होगा। जब हम इक्वल टू 5 कर रहे हैं तो 5.389655 we take it 5। ठीक है। अब लास्ट नंबर क्या है मेरा, इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 के पहले का नंबर क्या है मेरा, इवन है, तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये जब राउंड ऑफ होगा तो मेरा 5.896। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.3215। ठीक है। अब क्या है, ये लास्ट नंबर मेरा इक्वल टू 5 है, उसके पहले का नंबर हमने देखना है, उसके पहले का नंबर क्या है, ऑड में क्या करना है, हमने +1 कर देना है, तो राउंड ऑफ करके इसको क्या लिखेंगे 5.323। क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं दिखाती हूँ कि उनको सॉल्व कैसे करना विद द हेल्प ऑफ राउंड ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में एक मोस्ट कॉमन सा एग्जांपल है जो आपको हमेशा यूज करना होगा, पूरे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी बहुत सारे जगह में उसको यूज होगा, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, अगर इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह है, 62300000000 एंड सो ऑन, अराउंड 23 zeros आर देयर। ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह का नंबर लेके चलते हैं तो इसको कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते हैं, और जब चेंज करते हैं तो क्या होता है 6.203 इंटू 10 to the power 23। दिस इज द नंबर जो एवोगैड्रोस नंबर है, मोल नंबर है, आपको बहुत कुछ इसके बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा, तो ये नंबर तो वैसे भी दिमाग में बिठा लो अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 6.023 इंटू 6.023 इट्स 023। ठीक है। 6.023 इंटू 10 to the power 23, इट्स बेसिकली 22, बट मैं इसको 23 लेके चलती हूँ क्योंकि याद करने में कन्वीनियंस होता है, यहाँ 23 यहाँ 23, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। 6.023 इंटू 10 to the power 23, तो आप इसी को ध्यान में रखो। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कॉपी दिस। ठीक है। फिर मैं भी आप एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के करके दिखाती हूँ कैसे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है। हमें न्यूमेरिकल्स में जब आप ये एनसीईआरटी का पेज नंबर देखोगे, पेज नंबर दैट इज 122, तो 123 में देखना आपका 1.18, 1.19 और 1.320 तीन क्वेश्चंस दिया हुआ है जो रिलेटेड टू दीज 3 टॉपिक्स है। उसमें पहला जो 1.18 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ कि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है। जब हम 0.0048 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने नॉन जीरो काउंटिंग नंबर के बाद डेसिमल रखना है। तो इसके लिए हमें क्या है, यहाँ से डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है। डेसिमल को हम किस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। रूल याद करो, जब भी हम डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 10 के ऊपर नेगेटिव में डेसिमल जाता है, तो क्या हो जाएगा दैट इज 4.8 इंटू 10 to the power, कितने डिजिट्स ट्रांसफर किया है हमने डेसिमल को, 1 2 3, 10 to the power -3। ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 to the power -3। ऐसे ही 4-5 और क्वेश्चन है, आप ट्राई करो उसको कवर करने का। ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर हमने क्या करना है, 1.19 में क्या
क्या दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर हमने चेंज करना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। तो रूल्स याद करो, हमने क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जीरोस होगा बिफोर द फर्स्ट काउंटिंग नंबर, वो सारे जीरोस क्या होंगे, काउंट नहीं होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे मेरा ये दोनों सिर्फ है जो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, तो मेरा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2। क्लियर। जब हम राउंड ऑफ की बात कर रहे हैं 1.20 राउंड ऑफ है। अभी ध्यान रखो कि इसमें राउंड ऑफ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के साथ एक चीज ऐड किया है, दैट इज कि राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही। तो काउंट करो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। वैसे तो सारे ही नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो सारे ही काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है मेरे पास 5। हमने कितना करना है, इसको 3 तक ही रखना है। तो 3 तक सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक आएगा, यहां तक। तो यानी कि हमने ये वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर कर देना है। तो यानी कि इन दोनों को हम राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ जब भी करेंगे हम स्टेप वाइज करेंगे। पहले लास्ट डिजिट को हटाओ 6 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, रूल याद करो, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 में हम क्या करते हैं +1 टू द प्रीसीडिंग नंबर, दैट विल बी 2। क्लियर। अभी हमने यहां तक करना है, तो अभी इसको भी हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये क्या है लेस देन 5 में क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 34.2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा राउंड ऑफ का 34.2। क्लियर। तो आप ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। और भी कुछ बुक्स है या नेट पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल बताऊंगी। थैंक यू फॉर द डे।